see, more than 2,000 students have already applied for ANTHE. So are you ready for ANTHE 2025? Yes, we are! ANTHE is for classes 5th to 12th and it gives you a chance to win up to 100% scholarship for all Akash programs. Apply for ANTHE today. Exam dates are from 4th October to 12th October. Do not miss this opportunity because seats are filling fast. You can visit our offline center which is in Sri Vijayapuram, Jangli Ghat, or you can also apply online. जय हिंद। मैं आफ्ताब न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम मौजूद है मरीना पार्क श्री विजयपुरम, जहाँ पर बच्चों के लिए एक बार फिर से ट्रैफिक एजुकेशनल जोन का नया चैप्टर शुरू हो रहा है। जी हाँ, 17 अक्टूबर के दिन अंडमान एंड निकोबार ट्रैफिक पुलिस के द्वारा बच्चों के लिए तैयार की गई एक मिनी ट्रैफिक वर्ल्ड ने फिर से अपने दरवाजे खोल दिए हैं। जो पहले अंडमान एंड निकोबार ट्रैफिक पुलिस पार्क था, अब ट्रैफिक पार्क से अपग्रेड होकर सेंट्रल फॉर ट्रैफिक एजुकेशनल एंड सिमुलेशन CTES बन चुका है, जहां एक तरफ खिलखिलाहट है, बच्चों की मुस्कुराहट है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें ट्रैफिक के नियमों और रोड सेफ्टी के महत्व से रूबरू करने के एक अनोखा तरीका भी है। यहाँ नए सिग्नल्स लगाए गए, रोड मार्किंग को दोबारा मरम्मत करके और अट्रैक्टिव बनाए गए, ताकि बच्चे सिर्फ खेलते हुए मज़े ही ना ले, बल्कि सीखे भी कि सड़क पर कैसे चलाना है, सिग्नल का मतलब क्या होता है, ट्रैफिक पुलिस का रोल हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है। अंडमान एंड निकोबार ट्रैफिक डिपार्टमेंट का ये कदम एक मिसाल है, जहां एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों के साथ मिलते हैं। DGP हरगोविंदर सिंह ढालीवाल IPS यहाँ मिनी ट्रैफिक पार्क का उद्घाटन करेंगे। बच्चों के लिए ये एक छोटी सी दुनिया है, छोटे छोटे रोड, ज़ेब्रा क्रॉसिंग और मिनी ट्रैफिक लाइट्स के साथ, जहां वो अपनी बाइक या साइकिल चलाकर सीख रहे हैं डिसिप्लिन, पेशेंस और सेफ्टी। तो आज के इस इवेंट का मकसद सिर्फ एक ही है, सेफ्टी फर्स्ट, ऑलवेज एंड फॉरएवर। क्योंकि बच्चे अगर आज से ही ट्रैफिक के नियमों को समझ जाएंगे तो कल का अंडमान और भी सेफ और सफल रहेगा। तो आइए चलते हैं आज की इस ग्राउंड कवरेज को आप सभी के समक्ष रखने। अब कुछ ही देर पर यहाँ पर उद्घाटन समारोह शुरू हो जाएगा और हम देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर बच्चों के लिए ये ट्रैफिक पार्क नहीं बल्कि ट्रैफिक एजुकेशनल पार्क को बनाया गया है। DGP sir, chief guest of today's event, our esteemed IGP ma'am, senior officers of police department, distinguished guests, teachers, and our young friends from JNRM, NCC, and class 3 students of Khalsa Public School. They are sitting in the room inside.
It is a heartwarming moment to welcome you all to the inauguration of Center for Traffic Education and Simulation, the evolved and modern avatar of what was once fondly known as the Children's Traffic Park. When the Children's Traffic Park was first established in 1994, it was built on a simple but powerful idea to teach the importance of road safety, not just within the classrooms walls, but through the real-life experience. Even after the devastating 2004 tsunami, which caused severe damage to the park, it again rose in 2005, rebuilt and reopened with renewed energy, continuing its mission to nurture responsible road users from a very young age. Over time, as our roads grew busier, our vehicles faster and our distractions greater, the need for more immersive and realistic learning becomes clear. Today, under the vision and leadership of our worthy DGP sir, this park begins a new chapter as a center for traffic education and simulation, a modern, interactive and technology-enabled space that blends education with simulated experience. The new feature includes the car driving simulation room, housed in fully air-conditioned hall, allows visitors to experience real driving scenarios in a safe environment, alongside a curated display that showcases the evolution of vehicles and engines throughout the time. Our television section streams engaging road safety videos and awareness content, while outside the bicycle track with functioning traffic lights and signages recreates the real road conditions for students and practice discipline and safe behavior. Even for the youngest visitors, one can explore the cycle track, which is learning of the basic traffic sense through play and observation over the ground, which is on my right side and your left side. Our simulated environment brings roads to life. From bustling market zone with zebra crossings, schools and hospital zones we have created, where sensitivity and patience are the rule of the road. Each corner is designed to help learners understand how behavior must adapt with our surroundings. Slow near schools, cautious near hospitals, and alerts in markets. Let me also allow to introduce you to our newest members of Traffic Education family. There are two mascots we have created for CTES. That is just behind that in the center of the park. Their name is Bharat Singh and Hasmukh Lal. They are not just the cartoon figures, but as a metaphor, faces of discipline and friendliness, the perfect blend of Kadak enforcement and Hasmukh education. Together, they will guide our visitors through the park's activities, from learning road signs to earning reward points through the dummy driving license reward system. In future, we have plans to host workshops for the school's education, sessions for the government, public transport drivers, traffic volunteers, and other awareness campaigns for the public. Lastly, as we are ready to open this center for the public use, I want to assure you that utmost priority has been given to the safety. Every measure has been taken to ensure that the center operates within the prescribed norms. A comprehensive safety audit has been carried out by the Electrical Division of APWD as well as the Fire Department to guarantee that no aspect of visitor space safety is compromised. Since this facility will be frequented by the children and students, the entire area has been brought under the CCTV surveillance for continuous monitoring. As we stand here today, surrounded by the officers, educators and students, we celebrate not only an infrastructure, but an idea that the future of road safety begins with the awareness, civic culture and responsibility. We hope to make this not just a place for lesson, but a living lab of civic sense, where every visitor learns that use of public road is a shared responsibility with every other life on the road. I now request our chief guest, DGP sir, to kindly unveil the inaugural flag and formally reopen the Center for Education and Simulation. मेरा मानना यही है कि किसी भी चीज़ का फ़ायदा तभी है जब वो यूज़फुल हो, सिर्फ उसको दिखावे के लिए हमें नहीं बनाना है। और मीडिया पर्सनल जो हमारे साथ हैं ऑलरेडी दे हैव बीन हाईलाइटिंग लॉट ऑफ पॉजिटिव्स अबाउट अंडमान पुलिस। तो आई थिंक उसी सिलसिले में आपसे भी हमारी गुजारिश ये रहेगी कि ट्रैफिक एजुकेशन को
ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि अंडमान में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ना होने के बावजूद एक्सीडेंट्स हैं और फेटल एक्सीडेंट्स भी हैं, जो कि बड़ा ही कई बार ऑड लगता है। और उसका रीज़न यही है कि जो ख़ास तौर पे तो जो 16 से 18 साल की एज है ख़ास तौर पे, एंड स्पेशली 19-20, ये हमारी एज ऐसी होती है बच्चों की कि दे वांट टू समटाइम्स कम्पीट। एक दो ऐसे भी इंस्टेंस हुए हैं नॉर्थ एंड मिडल की तरफ कि कोई बच्चा शायद थोड़ा बहुत इंटॉक्सिकेंट के इन्फ्लुएंस में था एंड दे वर रेसिंग एंड काफ़ी सीरियस इंजरीज के साथ एक्सीडेंट हुआ। तो हमारी भी जो रूटीन में अंडमान पुलिस की रात को हमारे लोग जो चेकिंग करते हैं, उसमें भी फ्राइडे नाइट और सैटरडे नाइट को हमारा ख़ास तौर पे फोकस रहता है कि जो 10 से 12 बजे का टाइम है, जब लोग शायद खाना खाने जाते हैं या कई बार कोई बार में बैठ के ड्रिंक भी करता है, चाहे वो मेजर है 19-20 साल का या कॉलेज गोइंग बच्चा है, इन एजेस में ख़ास तौर पे टेंडेंसी रहती है ओवर स्पीड करने की। तो उस चीज़ के एनफोर्समेंट पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर इस एनफोर्समेंट के कारण हमारे जो फेटल एक्सीडेंट्स हैं और सिंपल एक्सीडेंट्स हैं उनमें थोड़ा हमें बेटरमेंट हुआ है। इसके अलावा जो आज की ये फैसिलिटी है, आप भी ज़रूर इसके बाद देखिएगा, मीडिया पर्सनल, आप इनको भी सिमुलेशन वगैरह अच्छी तरह दिखाइए। हमारा सारा इसका उद्देश्य ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों के बच्चे आएँ। ये बड़ी प्यारी लोकेशन है, समुंदर और जेटी पास है, और पार्क भी बहुत नीटली मेंटेन्ड है, इसको और स्प्रूस अप किया गया है, और इसमें हम थोड़ी फैसिलिटीज़ और ऐड करेंगे, जैसे गोल्फ कार्ट का या कोई और, ताकि बच्चों को एक बेसिक 4 व्हील्स की गाड़ी का ड्राइव करने का विदाउट एनी रिस्क एक्सपीरियंस हो। और मुझे आज बड़ा हार्टनिंग लगा जबकि हमारे कुछ एसपीज़ ने बताया कि उनके बच्चों ने साइकिल चलाना यहाँ पे सीखा है। तो बड़ी बात है, एक्चुअली साइकिल चलाना आना इज़ मच टफर, जैसे हम सब जानते हैं, देन टू व्हीलर, बिकॉज टू व्हीलर या मैकेनाइज 4 व्हीलर, बिकॉज एक बार आपको साइकिल बैलेंस करना आ गया तो बाद वाली चीज़ आ ही जाती है। बाद में तो फिर आपको थोड़ा स्पीड का ध्यान रखना है और उससे रिलेटेड जो डायमेंशन है। तो आई थिंक दिस ट्रैफिक एजुकेशन एंड सिमुलेशन फैसिलिटी, दिस विल बी मेकिंग अ क्वालिटेटिव डिफरेंस to the kind of traffic awareness we have and also the traffic movement later on. And once again I am thankful, खास तौर पे सारे जो बच्चे आए गर्मी में और सारे ट्रैफिक स्टाफ और हमारे पुलिस बैंड वाले भी, and entire police team of Andaman Nicobar Police, and lastly again our friends from media, thank you for coming and making it highlighted and reaching to the right audience. Thank you. Jai Hind. तो दर्शकों, बच्चों के चेहरे पर ये मुस्कुराहट और उनके अंदर का जज्बा ही बताता है कि अंडमान एंड निकोबार ट्रैफिक पुलिस का ये कदम कितना सफल है। ये सिर्फ एक रीओपनिंग नहीं, बल्कि एक नई सोच की शुरुआत है। एक ऐसी सोच जहां ट्रैफिक रूल्स सिर्फ बोर्ड पर नहीं लिखे, बल्कि हर दिल में बसने वाली एक जिम्मेदारी बन जाएगी। एक ऐसी सोच जहां ट्रैफिक रूल्स सिर्फ बोर्ड पर लिखे शब्द नहीं, बल्कि हर दिल में बसने वाली एक जिम्मेदारी बन जाएगी। डीजीपी साहब और उनकी पूरी टीम ने इस पार्क को फिर से
जीवंत करके साबित कर दिया है कि ट्रैफिक सेफ्टी सिर्फ सीखने की बात नहीं बल्कि जीने का एक तरीका है। आज के बच्चे कल के नागरिक हैं और उन्हें अगर हम सही दिशा दिखाएं तो हमारे आइलैंड का भविष्य और भी सुरक्षित और समृद्ध होगा। ट्रैफिक के ये छोटे छोटे सिग्नल्स, बोर्ड और ज़ेब्रा लाइंस बच्चों के लिए एक जिम्मेदार खेल लग सकता है, लेकिन इनके पीछे छुपी एक बड़ी जिम्मेदारी हम सब की है। तो आइए हम सब मिलकर इस अवेयरनेस को और आगे बढ़ाएं और अपने बच्चों को ये सिखाएं कि रोड पर चलना सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि एक फ़र्ज़ भी है। हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना और हर सिग्नल का सम्मान करो। उनकी ज़िंदगी से बढ़ के कोई रेस नहीं, क्योंकि ज़िंदगी से बढ़ के कोई रेस नहीं है। इसी उम्मीद के साथ आज एक बार फिर से मैं हमारे अंडमान निकोबार ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट का तहे दिल से पूरी अंडमान की जनता की तरफ से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस ट्रैफिक साइकिल पार्क को में फिर से एक नई शुरुआत दी, ताकि हमारे अंडमान निकोबार क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं वो यहाँ पर आए और बचपन से ही ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशंस को अच्छी तरह से समझ ले। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से इस पार्क को दर्शाया गया है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा। और अब यहाँ पर जितने भी बच्चे आएंगे वो सिर्फ एक पार्क को खेल नहीं बल्कि एक एजुकेशन, एक नई सीख अपने साथ लेकर जाएंगे। और सभी पेरेंट्स से ये निवेदन करते हैं कि आप सभी अपने बच्चों के साथ यहाँ आए, उनकी सेफ्टी, उनकी शिक्षा दोनों का ही ज्ञान साथ लेकर जाए। तो इसी उम्मीद के साथ न्यूज़ अंडमान 24/7 की आज की इस कड़ी से मैं विदा लेता हूँ। कैमरा पर्सन नशीन के साथ मैं आफ्ताब, न्यूज़ अंडमान 24/7 से। जय हिंद।